It's in the air and the bowler takes it. Hello, नमस्ते, शशिकाल, केम छो अदाब. मैं हूं आपका दोस्त, साथ ही में मेरे दोस्त दैट इज जोशुआ जॉइनिंग अस अगेन फ्रॉम कॉटन बोल स्टोरीज. हेलो जोशुआ. एकदम बढ़िया मैच. ऐसा नहीं कहूंगा ऑफ कोर्स बिकॉज दैट वाज अ कंप्लीटली वन साइडेड गेम. जितना ये रन फीस्ट ऑफ एन आईपीएल टूर्नामेंट था उतना ही लो स्कोरिंग ये फाइनल बना दिया. जय शाह जो यूजुअली अच्छी स्क्रिप्ट लिख के ऐसा एक्शन करते हैं, इस बार ऐसा एक्शन करना पड़ेगा जय शाह को. क्या ही मैच था. प्लीज टॉक अस थ्रू. Uh, like I told in the preview, Kanan, I was hoping that the worst game for Kolkata happens in the final because I was supporting Hyderabad. As it turned out, their best game they kept it for the final. Can you Absolutely. imagine that? For me, the IPL is now in three stages. One is the league stage. Then the other is the playoff stage where you play up to one or two games. And the third stage is the final match. They have dominated in all three. Like, it is just amazing to see this kind of dominance. And if you see whom do we give credit for, we give the first thing that goes to, and most people will hurry in saying that, oh, this is Gautam Gambhir's doing, which is great. And I'm all fan of Gautam Gambhir. But for me, I think it is the consistency of the overseas players of Kolkata that really did stand out. Shreyas सही बात Iyer, है. who's been a proven champion at the Mumbai state level, now champion at the IPL level, and a near champion in the 2023 World Cup, a performer with more than 500 runs in that tournament, right? So, Shreyas Iyer, for me, although he did not set the IPL on fire with his own individual performances, but the way that he rallied his troops, he believed in his players, it's great. Augurs really good for Indian cricket. फॉर मी, अगर मेरे को ये टूर्नामेंट ब्रेक डाउन करना है फॉर केकेआर, आई वुड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल पार्ट्स. बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट. बैटिंग डिपार्टमेंट में दे हैव फोर बैटर्स who has scored more than 350 runs. That sets the tone for them in batting department. Bowling department mein, they are the only team, and I repeat myself, they are the only team across the 17 years of IPL history जिनके पास पांच के पांच बॉलर्स, जो भी उनके मेन फ्रंट लाइन पांच बॉलर्स थे, all of them have 17 plus wickets. That is Andrew Russell, Sunil Narayan, Varun Chakravarti, Harshit Rana, and the $24 million baby, that is Mitchell Stark. इतना लोगों ने क्रिटिसाइज करा मिचेल स्टार्क को, इतना पैसा क्यों दिया, क्या दिया. ही प्रूव्ड हिज वर्थ इन द सेमीफाइनल्स, दैट इज द क्वालिफायर 1 एंड द फाइनल्स. उसने वो दिखाया कि जो उसका काम था, उसका जो रोल था स्टार्टिंग के दौर में विकेट निकालना, वो उसने करके दिखाया. many people might ignore, as you rightly called out, right? And as I have also heard many people called out, even Gautam Gambhir called out, कि लोग आग बबूला हो जाते हैं या एकदम ही ओवर द टॉप सेलिब्रेट करने लगते हैं जब एक बॉलर आके 150 प्लस बॉलिंग डालता है. यस, दैट इज ग्रेट, बट डू यू हैव बॉलर हु कैन बोल कंसिस्टेंटली वन लाइन वन चैनल एंड यूज देयर ब्रेन एंड बोल इन क्लच सिचुएशंस? दैट इज व्हाट हर्षित राणा डिड. हर्षित राणा ने वो जो मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप स्टेज मैच, जब हेनरी क्लासन को 13 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, उसने पहला बॉल छक्का मारा, उसके बाद 5 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, और वहां पे से उसने वो मैच कोलकाता नाइट राइडर्स को जितवाया. एंड दैट शोड द मेंटल एटीट्यूड दैट दिस बॉलर हर्षित राणा हैज. एंड आई फील अर्ली प्रेडिक्शंस अगेन कि हर्षित राणा शुड बी अ रेड बॉल प्लेयर फॉर इंडिया, एंड ही हैज दैट एटीट्यूड ऑफ अ फास्ट बॉलर. एक श्रीशांत वाला जो एटीट्यूड है, एक डेल स्टेन वाला जो एटीट्यूड है. I might be very wrong commenting too early, but I can see this guy becoming a legendary bowler for India when he's 29-30 years of age. And he is that clutch player जो इंडिया को हमेशा से चाहिए था. And I feel he is that going to be that clutch player. Now talking about an unsung hero, that has been Ramandeep Singh. रमनदीप सिंह के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा बिकॉज उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव कम इन केमियोस एंड इन फील्डिंग डिपार्टमेंट. उसने 8 बॉल में 25, 10 बॉल में 30, 9 बॉल में 27 ऐसे टाइप की इनिंग्स खेले हैं जो बहुत अंडर द रडार जाएगा. जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उसने यॉर्कर पे जिप करके बॉटम एंड से 6 मारा. दैट
catch that he took running backwards from point, वो एक्स्ट्रा कवर तक भाग के गया, उसने रिवर्स देखते देखते कैच पकड़ा. आज के मैच में भी अगर आप देखोगे, he saved two crucial boundaries, जिससे मोमेंटम आता है, जिससे एक टीम का मोरल जो बोलते हैं हम लोग, एक वो ओवरऑल बढ़ जाता है. एंड दैट इज व्हाट रमनदीप सिंह डिड. एंड वन नेम आई वुड लाइक टू लास्टली कॉल आउट, जो शायद पूरा मिस आउट होगा गौतम गंभीर के प्रेस करने में, श्रेयस अय्यर को प्रेस करने में, चंद्रकांत पंडित को भी शायद कोई लोग प्रेस करे. टू नेम्स, एक नहीं दो नेम शायद बहुत कम लोग लेंगे. दैट इज भरत अरुण एंड द सेकंड इज अभिषेक नायर. अभिषेक नायर हैज बीन विद दिस टीम फॉर द पास्ट 4 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड उसने प्लेयर्स को बनाया है. रिंकू सिंह, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, जिसको उसने बनाया था, देन ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर आरसीबी. ये सब प्लेयर्स को अभिषेक नायर ने पर्सनल, वरुण चक्रवर्ती, ये सब प्लेयर्स को ये कोचिंग करता है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग आईपीएल, ऑफ साइड ऑफ आईपीएल टू. इसके इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस देखता हूँ, इसके ट्विटर पे मैं वीडियोस देखता हूँ. एंड अभिषेक नायर probably would go under the radar. He should not go that. That is what my appeal to the entire audience would be कि प्रेस करो, लेकिन आप सभी को प्रेस करो. भरत अरुण जिन्होंने एक बॉलिंग रेवोल्यूशन लेके आया. यस जोशुआ, यस प्लीज. Yes, and I'll just continue from where you're saying from Bharat Arun. Now, Bharat Arun has been one of the major reasons why India's performance overseas improved because of the bowling performance. Now, the Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, and the development of these bowlers, right? Umesh Yadav, even Mohammad Siraj Ishan later, Sharma gives a lot of Ishan credit Sharma. to Bharat Arun. Yeah. So all the development of all these pacers and India's wonderful performance overseas has because of Bharat Arun. India may not be the team that will pile up 400 in 2 innings, but is definitely the team that will end up taking 20 wickets because of Bharat Arun. So these, and you rightly pointed out that these are unheralded personalities that KKR brought in, and you see the rewards. It is just heartening to see the kind of effort that when the people put in, when the right people are doing the right kind of job. आप देखो कि यार 75 विकेट तो 5 गेंदबाजों ने ले लिए, तो आपके पास इन 75 जो 5 गेंदबाज हैं, ये सारे मैच विनर्स हैं. Invariably, out of the 5 bowlers, you are actually having 2 bowlers who are having a good day. That is the kind of average. And when bowlers have a good day in T20, they wipe out the opposition from competition with the bat. That is why they did so well. It's a cue for the Indian cricket team going forward. Get in the right kind of bowling coaches, get in the right kind of bowling mentorship. Abhishek Nair, another excellent student of the game. Now, he was one veteran of a player, someone who understands both skills very well because he was a genuine all-rounder, ability to do many things with both bat and ball. Now, Abhishek Nair is an astute student of the game. He has a great sound mind. Someone said Sanjay Bangar is one of the best batting coaches India had, and it's very true because Sanjay Bangar has been such a huge domestic giant in terms of domestic cricket, playing for Railways and contributing so much for Team India as a batting mentor, as a batting consultant to the Indian team. Now, Abhishek Nair is someone who has the knowledge of being a very experienced IPL player. He's able to nurture player. He knows where the players are coming from. So Exactly. with the development of Rinku Singh under him, development of Ramandeep, and when you were calling out the scores of Ramandeep Singh, I was tempted to say that Ramandeep Singh has become the new Rinku Singh for this team, right? Because Rinku Singh came up with that kind of performances, and it's heartening to see that Kolkata Knight Riders are coming up with these players. It's not just the glamour quotient that you associate with the mentors, the owners and everything. It is the hard work that you put in by choosing the right kind of players and then executing it on the field. And that's why I think I will borderline be awestruck by this kind of dominance that Kolkata has shown, Kanan. We have a hardworking, a dedicated,
person who is joining us right from his office. As you can see, guys, Ishan Lalwani is walking way back to his home. He has his bags on his shoulders. Right from his office, is going back home. Salute Joshua and Ishan, both of you, to be joining at this time. Yes, Ishan, without further ado, please talk us through the match. आपने अगर देखा होगा, आपका किस्मत या आपके काम ने आपको अलाउ किया होगा तो भाई काम ने तो अलाउ नहीं किया, बट स्टिल आई समहाउ फाउंड अ वे टू फॉलो द मैच। और थोड़ा डिसअपॉइंट ऑब्वियसली हुआ, फाइनल था, इतना वन साइडेड यार हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये एक्सपेक्ट मैंने आपको पहले ही कहा था हमारे जो लास्ट शो में कि केकेआर विल विन इट, जो उन्होंने किया। एब्सोल्युटली और इतना इन्वेंसिबली, इतना कन्वेंसिबली किया कि यार तोते उड़ा दिए एसआरएच के बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एसआरएच ऐसे ऐसे हथियार डाल देगा। यस यस, दे हैड क्वालिटी। स्टार्क ने ऊपर सेटअप किया, वैभव वैभव अरोरा ने भी उनको बहुत बखूबी साथ में जाया। प्रॉपर आपको स्विंग देखने मिला, जो आजकल टी20 क्रिकेट में बहुत कम दिखता है। इवन वनडेज में आपको कभी कभी इतना स्विंग देखने ट्रू। नहीं मिलता, टेस्ट में तो खैर मिलता है। और उसके बाद देखो आप, स्टार्क ने प्रॉपर जो जो आज जो गलती की उन्होंने, आप देखिए, एसआरएच आज मैच शुरू होते ही बैकफुट पे था। उसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हेड फेस करने नहीं आया मिचेल स्टार्क को, वो डरे हुए थे, उनके जहन में थी वो चीज कि जैसे आउट किया। लेकिन स्टार्क ने कहा कि भाई हेड आए, अभिषेक शर्मा है, मैं तो वैसे ही आउट करूंगा आपको। और उन्होंने वही किया, फ्रंट आगे गेंद डाली, सेम उनका जो पढ़ के निकल, जो लेफ्ट हैंडर डबल माइंड में जाता है और उनका डंडा ले गई हो गया। सेम ऐसा लग रहा था कि हेड का जो एक्शन रिप्ले हुआ था लास्ट टाइम का, तो ट्रू। वो अभिषेक शर्मा के साथ किया। तो उसके बाद वैभव अरोरा ने क्या किया, उन्होंने भी हेड को प्रॉपर सेटअप किया, बाहर निकालते गए, अंदर लाए। हेड भी डबल माइंडेड में गए, उसको छोड़ू खेलू पोक किया, दिया उन्होंने। तो भाई ऐसे, मतलब एसआरएच पूरे टीम के हुआ बना दिया था एसआरएच ने कि भाई हम तो ऐसी टीम है, 300 बनाएंगे, एक दिन 350 बनाएंगे, अरे हेड अभिषेक शर्मा उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। केकेआर ने दिखाया भाई, स्टिल देयर इज अ रूम फॉर ट्रेडिशनल क्रिकेट, व्हाट वी कॉल, एब्सोल्युटली। इवन दो इट या इज T20, still there is a room for traditional cricket, there is room for class, there is room for temperament, even in T20 cricket. So भाई hats off to KKR and big congratulations to them. Big congratulations to our Gambhir, who can be our future coach going forward. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो भाई सल्यूट है इस टीम को, बहुत ही अच्छा खेला। क्रिस्प पॉइंटर्स बताए ईशान ने, दैट देयर इज रूम फॉर सेंसिबल क्रिकेट इन टी20 आई आल्सो स्विंग। एंड जब भी सीम होगा, रेस्पेक्ट द बॉलर, शायद वो नहीं किया कहीं ना कहीं। और जैसा ईशान ने कहा, मैच शुरू होते ही वो लोग हमेशा बैकफुट पे थे। ट्रेविस हेड वाज अफ्रेड टू फेस मिचेल स्टार्क। और मैंने एक वीडियो देखा है ईशान एंड जोशो, आप लोग को बता रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, वहां पे मिचेल स्टार्क हैज बोल्ड ट्रेविस हेड 4 टाइम्स। और वही सेम फैशन में जो सा क्वालिफायर 1 में हुआ, वैसे ही सेम फैशन में 5 बार इंक्लूडिंग आईपीएल। करेक्ट, आईपीएल लेके 5 बार। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये मैच एसआरएच टॉस के टाइम ही हार गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिच था ही नहीं। जब उनको पता था क्लियरली कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी ड्यू अफेक्टेड गेम और एनीथिंग, आई फेल्ट कि वो जो शाम को 7 से 8, 8:30 तक एक जो हवा चलती है, जो जैसा जोशुआ ने लास्ट एपिसोड में कॉल आउट किया था, एक चिपॉक में एक हवा चलती है और स्टैंड्स के बीच में जो गैप है, वो सी के तरफ से जो ब्रीज आता है वो स्विंग करने में हेल्प करता है। और वो हेल्प किया मिचेल स्टार्क और वैभव अरोरा ने बखूबी उसका फायदा उठाया। तो वहां पे मेरे को लगता है कि पैट कमिंस को ये गलती शायद 19 नवंबर को करनी चाहिए थी, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है। श्रेयस अय्यर ने सबका बदला लिया एंड जोशुआ इज रेडी एंड रोरिंग टू बोल देयर। बोल नहीं, मैं बोलूंगा बोलो जोशुआ, प्लीज गो अहेड। एक जोशुआ, Yeah, जस्ट सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप शुरू करें उससे पहले मैं एक पैट कमेंट के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा। आईपीएल ट्रॉफी थी इसलिए जाने दिया, आईसीसी ट्रॉफी होती तो बाहों में होती। या जोशुआ प्लीज गो अहेड। आज आज ईशान ने 2 डायलॉग ऐसे बोले हैं जिस वजह से हमारी ऑडियंस अभी भी ईशान को चाहती है। वन वॉज तोते oh उड़ा yes, दिए, दूसरा है इस बाहों में होती। yes. बाह में तो हो गया है,
और बाहों में आया है आईपीएल का ट्रॉफी श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर के पास। लेकिन ये डर जो है ना, खौफ, ये खौफ बड़ी चीज है साहब। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, खौफ जो है ना, वो बड़ी चीज है। डर के कारण आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको ये देखना था कि आपका बैटिंग एटीट्यूड क्या है व्हेन यू हैव वन द टॉस। Is this the same kind of bowling lineup that you are facing against Rajasthan? Did you study the KKR bowlers before trying to decide a batting strategy against them? और या फिर तुम बैल बुद्धि तरीके से तुम उसके सामने, भैया हम तो मारेंगे, हम मारेंगे, हम तो अपने गेम से अलग नहीं हो सकते और हम तो ऐसे ही होंगे, हम ऐसे ही लड़ते आए और हम ऐसे ही करेंगे। तो भाई करो तो मरो। Those who live by the sword, they will die by it also, and that is what happened. यहां पर चांस था एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा संभल कर खेलने का। तुमको पता लगा भाई पहले आउट हो गया वो खिलाड़ी, तो दूसरा जो ओपनर है वो कर सकता है, भाई रुक जाओ थोड़ा, मैं रुक के खेलता हूं, शायद ये 200 वाली पिच नहीं है या फिर ये 170 वाली पिच हो सकती है, सो लेट मी स्टे एट द विकेट, थोड़ा सा मैं एक दो घूंट कम रन बनाने वाले मिचेल स्टार्क के खा लूंगा, मैं डिफेंड कर लूंगा इस उसमें कि चलो कुछ ना कुछ करके मैं 170 तक कोशिश करता हूं, मोमेंटम बिल्ड करते हैं, 170 तक पहुंचते हैं, ना कि आई विल थ्रो द लेदर आउट द बॉलिंग एंड वो बॉलिंग आपके स्टंप्स को ही ले डूबे, राइट। सो आई थिंक वहां पर हैदराबाद मिस्ड अ ट्रिक, they allowed a lot many more wickets to fall, and I feel when you're so much behind you can't play catch up, you will be annihilated, and that is what Kolkata did. A lot of things for Indian cricket team to learn from Kolkata style of play in their T20 scheme. Obviously we know the dangers that the Indian cricket team doesn't have the kind of bowlers that are required to take buckets of wickets, like, right, in Kolkata for them had luckily a lot of good bowlers, but many things that the Indian cricket team can learn from this style of play that Kolkata did and not repeat the mistakes that other teams like Hyderabad, even Rajasthan, and even Delhi and Lucknow for that matter, teams that missed out, right? RCB and Chennai, all those teams, there were a lot of mistakes that those teams did that Indian cricket team should not make. That's what I have to say that. मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा चीज वो लोगों ने मिस किया आज, दैट वाज वॉशिंगटन सुंदर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाने का स्कोप था इस गेम में। ही इज ऑल्सो गुड लेफ्ट आर्म बैटर और केकेआर के बैटिंग लाइनअप में लेफ्टीज बहुत है, तो उसका ऑफ स्पिन शायद काम में भी आता, बट वो ट्रिक भी शायद आज मिस किया बिकॉज इट वाजंट पैट कमिंस डे एज अ कैप्टन। आई फेल्ट दिस वाज ऑल डन एंड डस्टेड गेम when I would say Heinrich Klaasen got out, वहां पे the final nail in the coffin लग गया था। मुझे उसी से होप थी कि शायद Heinrich Klaasen 150 तक लेके जाएगा, but that was the game. The nail was already cemented by the KKR bowlers. Now that the tournament is over and we have a World Cup in another 10 days, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो स्क्वाड में तो जो 15 का स्क्वाड गया है उसमें सिर्फ एक प्लेयर ईशान और जोशुआ, आप दोनों को, एंड ईशान को स्पेसिफिकली एक प्लेयर विथ नो स्टार मार्क, ताकि वो डिप्लोमेटिकली 2-3 प्लेयर ना घुसा दे, एक प्लेयर आपको लग रहा है जो अभी भी आपको स्वैप करना चाहिए? फॉरवर्ड आंसर फिर भी मुझे डिप्लोमेटिक कहते हैं यार, हद है भाई। नाउ आई लाइक गिविंग यू दैट टैग जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। तो कौन सा ऐसा एक प्लेयर होगा ईशान, स्टार्टिंग विथ यू, जो आपको लग रहा है कि अभी भी शायद स्वैप कर सकते हैं उसको? भाई देखो, मैं अभी भी क्या, अगर आप मुझे ये सवाल 1 महीना जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी पूछते, तो मैं अभी भी बोलूंगा यार कि आप, इंडिया हैव मिस्ड द ट्रिक बाय नॉट पिकिंग रिंकू इन द इनिशियल 15। यस, आपने उनको रिजर्व रखा है, नो मैटर व्हाट, आपने अच्छी टीम दी है, आई एम हैप्पी विद दैट, बट आपने रिंकू को मिस किया है यार। मतलब आई थिंक कि आपको 4-4 स्पिनर ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी कि एक साथ आप ऐसा कितना भी टर्निंग ट्रैक हो, आप 4 स्पिनर तो नहीं उतारोगे एक साथ यार, कितनी भी टर्निंग ट्रैक हो आप मैक्सिमम 3 स्पिनर के लाओगे। तो उस लिहाज से चहल
कुलदीप आपको कुलचा, मैं बहुत हैप्पी हूं उनके लिए कि कुलचा वाज ब्रॉट बैक, लेकिन दे कुड हैव गॉन विद ईदर ऑफ जडेजा और अक्षर पटेल। हाँ ठीक है, दोनों क्वालिटी ऑलराउंडर है, दोनों बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर कर लेते हैं, बट यू नीड एक 19-20 का फर्क था तो आपको 20 के साथ जाना चाहिए था, आप 19-20 सही दोनों बात को है। नहीं ले जाना चाहिए था। ठीक है, और दूसरा एक एज एन इंडियन क्रिकेट फैन एक खराब चीज ये हुई है कि शिवम दुबे को जिस चीज के लिए टीम में लाए थे हम कि वो स्पिनर्स को एकदम उनके एक्सप्लॉइट साथ करेंगे। तोड़ मरोड़ कर रहे थे बिल्कुल, तो वो उन्होंने टीम अनाउंस होने के बाद 6 या 7 की हार्डली एवरेज है, और नॉट टू मेंशन 2-3 मैच सीएसके सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आ रहा है, इंक्लूडिंग द गेम अगेंस्ट आरसीबी जहां उन्होंने 9-10 रन किए 15 बॉल पे, जहां पे आपको 12-15 का रन रेट चाहिए था। सही बात तो है। दैट मतलब अब वो शायद मेंटल इफेक्ट है या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई होप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एज एन इंडियन फैन की ट्रू। दुबे वापस आना शुरू कर दें। बट अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा ही है कि इफ यू कुड स्वैप वन प्लेयर, तो ऑब्वियसली मुझे रिंकू सिंह तो भाई 15 में चाहिए, और आई वुड हैव टेकन आउट वन लेफ्ट आर्म स्पिनर इधर फ्रॉम जडेजा या अक्षर पटेल। Rather pinpointed answer this time from Ishan. Yeah, moving मोर moving ऑफ नॉट मैच। moving to Joshua, क्या लगता है किसी को स्वैप करोगे आप कि नहीं करोगे डायरेक्टली? नहीं, मैं स्वॉप नहीं करूंगा क्योंकि द लॉजिक बिहाइंड द बैलेंस ऑफ द टीम उसमें रिंकू की जगह नहीं बनती है। इस टाइम पे अगर मैं रिंकू की जगह लाऊंगा तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली या रोहित शर्मा में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। फॉर मी आई थिंक द ओनली वे रिंकू सिंह कैन कम इज बाय रिमूविंग यशस्वी जायसवाल। द प्रॉब्लम विथ रिमूविंग यशस्वी जायसवाल इज only one of the top 3 batters with the highest strike rate is यशस्वी जायसवाल। अगर 20 बॉल खेलोगे, सिंपल तरीका है यशस्वी जायसवाल को कंपेयर करने का कि 20 बॉल आप विराट कोहली को दो, रोहित शर्मा को दो और यशस्वी जायसवाल को दो। इन तीनों ओपनिंग बल्लेबाज है, इन तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से सबसे ज्यादा रन 20 बॉल में यशस्वी जायसवाल बनाने की चांस है। दैट इज वाई उसको टीम में रखा गया, राइट। बहुत बारी ओपनिंग बैट्समैन का जो होल मोडस ऑपरेंडी होता है वो होता है कि पहले 6 ओवर में आप 20 गेंदों पे 40 रन बनाइए। ट्रेजिकली, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर प्लेयर, यशस्वी जायसवाल इज द ओनली ओपनिंग बैट्समैन दैट हैज दैट कैपेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एट 20 बॉल 35 और 40। लेफ्ट राइट भी बनाता है वो। Also left right batting combination, and Indian team for some weird reason is a Dayal Buddhi with left hand batting combination. Because of this left hand batting combination they've gotten Shivam Dube. The fact that he scored against spinners in IPL is a different thing that was altogether. the only reason even No, this guy I don't, Ishan Kishan played the entire World Cup. man, I Yeah. don't think I really want to counter you here. I don't think Shivam Dube is in the team just because of the fact he is a left-hander. I truly believe he is in the team just because he played in the IPL, the way he Because smashed of his ability to tong the spinners is what I feel. Yeah, the absolute. and I feel USA if India needs to ground इतने छोटे benefit, हैं कि वो मिस हिट भी करेगा तो सीख जाएगा। for me, for India to benefit, take the best out of Shivam Dube is understand why and how Chennai used Shivam Dube at that position. Till the time India doesn't do the same, you won't get the best out of Shivam Dube and you'll keep crying, अरे यार ये 4 ओवर तो दे दे बॉलिंग में, कहीं 2 ओवर तो दे दे बॉलिंग में, right? So for me, Rinku Singh comes in as if I use a swap, I will invariably दिल पे पत्थर रखे मैं यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करूंगा, रिंकू सिंह को लेके आऊंगा, बिकॉज आई नो दैट सही स्ट्रेटेजी ये होगी कि विराट कोहली रोहित से ओपन करा के आप सूर्य कुमार को 3 पे झोंको और चौथे नंबर पे आप शिवम दुबे को लेके आओ, या फिर ऋषभ पंत को बोलो विद द सेम अप्रोच। ऋषभ पंत एंड शिवम दुबे को सेम करना है, आपको मारना है, राइट, नंबर 6 पे, क्योंकि आपका एक डिफेंसिव रविंद्र जडेजा, डिफेंसिव हार्दिक पांड्या आ रहा है। So therefore, the modus operandi of number 4 and 5 batsmen is to go after the bowling. Maybe that is a video for another day. What should be Indian team batting strategy in the T20 World Cup? But right now, I think I will end by saying that one swap, Rinku Singh in, unfortunately यशस्वी जायसवाल out. मेरा वो एक स्वैप वाला प्लेयर होगा। I can see the disappointment in Ishan's face, but yes, I also agree with you Ishan. इस चीज में आई एम विथ यू। मेरे लिए अगर एक स्वैप बोला जाए तो आई वुड डेफिनेटली स्वैप इन
Sandeep Sharma instead of Mohammad Siraj. क्योंकि मोहम्मद सिराज हैज नेवर बीन अ गुड T20I bowler, neither for his franchisee, neither for India. एंड संदीप शर्मा, मैं परसों स्टैट्स देख रहा था, he has almost, I would say almost like to like numbers as of Jasprit Bumrah in IPL. And वो numbers कहीं ना कहीं, because he doesn't have tattoos, because he is not very aggressive, very on the face player, शायद वो कहीं ना कहीं वो brushed under the carpet चले जाता है ये player. But I feel he has got a very good slower delivery. He has got a good in swinger. हम लोग ने बहुत बार देखा है, and he bowls very good at the death too. तो शायद जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और को एक लेफ्ट आर्म एंगल और एक राइट आर्म हिट द डेक बॉलर को अगर कोई एक कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट बनता, तो वो शायद एक ऐसे बॉलर का होता जो बहुत बढ़िया स्लो डिलीवरी डालता है, और वो शायद मेरे ख्याल में संदीप शर्मा थे. बट या, दैट इज फॉर अनदर डे. मुझे लग रहा है ये आईपीएल, इफ आई हैड टू रेट दिस आईपीएल among the best IPLs ever, I would not even have this in the top 5 for me at least. Ishan, Joshua, आप दोनों का क्या पॉइंट है? Do you feel, Ishan, this was even in the top 4 or top 5? No, I don't think so, to be honest. क्योंकि देखो, आपने कई बार होता है, कई आईपीएल आप ऐसे खिलाते हो कि आप चेन्नई के खड्डों पे खिला देते हो. 140 भी नहीं बनते थे, एक जमाना वैसा था. अब इस बार आपने किया कि आपने टोटली हाईवेज पे खिलाया, स्पेशली एसआरएच और केकेआर जैसी टीम्स को. तो भाई 250 लगते रहे बेचारे बॉलर, मजदूरी करते रहे, पिटते रहे, अपनी इकोनॉमी खराब करते रहे, और अल्टीमेटली क्रिटिसाइज भी होते गए कि भाई ये 250 कैसे खा रहे हैं रोज. पर आप खड्डों, आप हाईवेज पे भी तो खिला रहे हो, आप ये भी तो देखो. और उसके अलावा स्पेशली ये आईपीएल का मुझे सबसे बुरी चीज लगी, इम्पैक्ट प्लेयर रूल. क्योंकि देखो आप, भाई आपने रन्स तो बढ़वा दिए, लेकिन आपने ऑलराउंड एबिलिटी का क्या? आप सही बात है. बैट्समैन ले आ रहे हो, सीधा सीधा आप ऑलराउंडर को निकाल रहे हो. आप या तो बैटर को इम्पैक्ट प्लेयर ले आ रहे हो, या तो आप बॉलर को इम्पैक्ट प्लेयर ले आ रहे हो. वो आपकी कॉम्बिनेशन के लिए रूल्स का तो आप बखूबी इस्तेमाल कर रहे हो. लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर की ओर देखें तो भारत को वैसे ही ऑलराउंडर नहीं मिलते. अगर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर करे तो मैं पांड्या के अलावा आपको शायद दुबे अब थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं, बट स्टिल कोई इतना बड़ा आपके पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. और ये आईपीएल के इम्पैक्ट रूल आने से आपने वो गुंजाइश जहां और भी ऑलराउंडर चीज आ कर सकते दिया हैं. है. Exactly. तो आप एक आईपीएल एक लीग है जहां आप ऑलराउंडर ग्रूम कर सकते थे, आपको डोमेस्टिक सर्किट से अच्छे ऑलराउंडर मिल सकते थे, लेकिन अब आपने उसकी गुंजाइश भी मिटा दी. इवन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया, एड्रेस आई सॉ किया दैट था. वीडियो. या तो भाई मैं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इम्पैक्ट प्लेयर को रूल को हटा के आप प्रॉपर 11 के रूल से आप आ जाते हैं आईपीएल में, तो अगले साल. सही बात है ईशान, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है. व्हाट डू यू फील, जोशुआ? क्या है आपके लिए इस आईपीएल का ओवरव्यू? इस आईपीएल का ओवरव्यू ये है कि गलत, यस, इस आईपीएल का ओवरव्यू ये है कि गलत स्पॉट्स के लिए बहुत सारी टीम्स लड़ रही थी. देयर वाज अ मास डिवाइड इन वन टीम एंड द रेस्ट ऑफ द टीम. दैट्स व्हाई at the competitive level it wasn't as great as for some of the past IPLs. So yes, a far divide, and based on the skill level and adaptability level, recovery level, I think the right team won. But there was less competition in this, so it will not be in my top 5 IPL for sure. Same, likewise Ishan and Joshua. Yes, finally we all have unanimous opinion For the at first something, I time in the think. last 2 months. It's very rarest of rare things, है ना? So I feel, though we did not have a good IPL, we did have a definitely good episode for our audience for sure. And with this, I would like to wrap up this episode. Special thanks to Ishan. He has been standing there, he's not taking that lift क्योंकि शायद network disconnect हो जाएगा. That is what I feel. I have again read your mind if I'm not. Having conversation with me and Joshua more often. You have become quite smart now. Thank you so much, Ishan, specifically to you for joining after leaving your office, taking your time out. And Joshua, आपको कल सुबह ऑफिस जाना है, फिर भी आपने इतने लेट तक ज्वाइन करा. थैंक यू सो मच टू बोथ आवर ऑडियंस. आप लोग को ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe to our channel, that is Cot and Bolt Stories. With this is me, this is Ishan, and this is Joshua signing off from Cot and Bolt Stories IPL edition. We will back
with the World Cup edition, where we all will be not cheering different teams, but we'll be cheering India, and we'll give our And best. that's what we call a true cricket. Yes, definitely. Cool. Signing off from Cotton Wool Stories. Please like, share, and subscribe to our video. Thank you.